اور ویورز پاکستان میں اٹس ناٹ اے وہ کہتے ہیں نا اٹس ناٹ اے ڈل ڈے، کبھی بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور ابھی یہ چل رہا ہے کہ 4-5 دن پہلے تو حکومت ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو ملیٹنٹ پارٹی ہے ٹی ایل پی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، بین کر دیا گیا ہے. بین کر دیا گیا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے. اور ٹھیک 3 دن بعد انہی کے ساتھ ساری جا کے لیڈرشپ پاکستان کی جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے اور ان کو سارے کیسز واپس لے رہے ہیں اور سارا کچھ واپس لے رہے ہیں. یہ آپ ہمارے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب کی بات سنیں. میرے پاس ایک اور ویڈیو بھی ہے، میں وہ نہیں چلانا چاہتا جس میں سارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ آئی وانٹ ٹو رن دس. حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے، اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا. اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا. اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا. جی تو یہ تھے انٹیریئر منسٹر صاحب جو کہ بیان دے رہے تھے، اور یہ بیان انہوں نے آج صبح تقریباً 5-6 بجے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا. بات کہاں سے شروع کی جائے آج؟ مطلب اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ ریٹریٹ ہے، وی کال اٹ اے ریٹریٹ، کہ آپ نے ایک اسٹیٹس پوزیشن لی، آپ نے اسرٹ کرنے کی اتھارٹی کوشش کی، آپ کامیاب نہیں ہوئے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ ریاست کے پاس چوائسز نہیں ہوتی. انہوں نے لا اینڈ آرڈر بھی دیکھنا ہے، انہوں نے معاملات دیکھنے ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے کہ ملک کے اندر کہیں فساد نہ ہو جائے، فتنہ نہ ہو جائے. ہمیں گورنمنٹ کو ہمیشہ تھوڑا سا کشن دینا چاہیے. لیکن اس سے میسجنگ کیا جا رہی ہے؟ فار ایگزامپل اگر ہم نے پارلیمنٹ میں آج 20 اپریل ہے اور پارلیمنٹ میں ریزولوشن پیش کرنا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو یہاں سے بھیجنا چاہیے یا نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اٹ سیلف ایک ڈیفیٹنگ کیس ہے. مطلب چند ان الیکٹڈ لوگ، چند ہزار لوگ ریاست پاکستان کو یہ فورس کر سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن لے کے آئیں. یہ ہے کیا ریاست ایسے کر سکتی ہے کہ ان الیکٹڈ لوگ، چند دھرنے کے لوگ جو 50,000 ہو سکتے ہیں، 1,00,000 ہو سکتے ہیں، وہ فورس کر رہے ہیں ریاست کو، اسٹیٹ کو، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو کہ جائیں پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن پاس کر کے دکھائیں ہمیں. اس کی آبویسلی امید تو یہ ہے کہ وہ ساری پارلیمنٹ سپورٹ کرے گی کہ ان کو نہیں باہر بھیجنا چاہیے. امید تو مجھے یہ ہے. لیکن اب پارلیمنٹ میں بحث تو ہوگی، اب پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی، اور اب گورنمنٹ کی لیدے ہوگی کہ گورنمنٹ نے پہلے یہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا. آج تک گورنمنٹ نے یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں کیا کہ جو ہم لے کے آئیں گے. اگر آپ نے 20 تاریخ کو یہ پارلیمنٹ میں لے کے آنی تھی یا اس سے پہلے لے کے آنی تھی، تو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ جو اتنا نقصان ہوا اس کا کیا فائدہ؟ جو 6 دن سے آپ نیشنلی جو آپ عوام کے سامنے ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اس سارے پوزیشن کا؟ تو گورنمنٹ از ناٹ اسٹرانگ ایٹ دس مومنٹ. یہ انہوں نے بہت اسٹرانگ ایکشن نہیں لیا. اور ابو آل جتنے بھی لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں سب چھوڑ رہے ہیں. تو جو چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو آپ پہلے کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے. اور اس سے بھی آگے چلے جائیں، وہ کہہ رہے ہیں جی دھرنا جو ہے وہ ٹی ایل پی ختم کر دے گی. ٹی ایل پی نے تو دھرنا آلریڈی ختم کیا ہوا تھا، ایک جگہ پہ دھرنا رہ گیا تھا ان کا، لاہور میں. یہی گورنمنٹ ہمیں بتاتی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سمیت جو مسجد رحمت اللہ العالمین ہے جہاں پہ دھرنا چل رہا ہے وہاں سے بھی ختم کر دے گا. اٹس گڈ اگر وہ کر دیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے، مناسب بات ہے، کر دیں. لیکن جو 4th شیڈول ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس 4th شیڈول کے اوپر آپ نے ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو ڈالا اور ٹی ایل پی کے لوگوں کو ڈالا، اب وہ بھی واپس لے لیں گے.
सो बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस चीज को मान जाएंगे कि यार ये फॉर द सेक ऑफ अमन की खातिर ये सारा कुछ हो रहा है। अगर ये अमन की खातिर हो रहा है तो हमें ये बताया जाए कि क्या ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है या एक टैक्टिकल रिट्रीट है। क्या ये एक लार्जर पिक्चर है रियासत की कि हमने इसी तरह इन जत्थों के आगे रिट्रीट कर जाना है, या कि ये एक दफा हम कर रहे हैं। क्या सिर्फ इस दफा के लिए कर रहे हैं और वापस हम इन लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डालेंगे, वापस हम इन पे जो है वो जो पर्चे कराएंगे और इन ये जेलों में जाएंगे। ये भी पता चलना चाहिए रियासत की पॉलिसीज हवाले से हम क्या कर रहे हैं। हमें इस चीज को डिटर्मिन करना है। हम लोग पूरी दुनिया में किस तरह मजाक बन जाएंगे, और लोग हमें सोच रहे हैं कि ये क्या लोग हैं ये। मैं आई डोंट वांट टू गेट इट टू मच इनटू कंप्लेनिंग कि बिकॉज मैं समझता हूं कि जो रियासत पाकिस्तान होती है, कोई भी मुल्क होता है, द पीपल शुड स्टैंड विद द गवर्नमेंट और स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए, एंड वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट। लेकिन हमें को क्लियर कट पॉलिसी पता चलनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी है क्या। अभी टीएलपी की डिमांड जो थी, उनमें जो एक डिमांड है वो है कि वो शेख रशीद का इस्तीफा रखें सामने। वो शेख रशीद को चाहते हैं कि इनको फारग किया जाए। फ्रेंच एम्बेसडर को तो बाहर भेजे ही, वापस भेजा ही जाए इन जो इश्यूज हुआ, लेकिन आप शेख रशीद को भी जो है वो मिनिस्टर ना रहे अब। और बाकी वो जो अब आप इमेजिन करें, अगर इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इसको मिनिस्टर को निकाल दें, वजीर को निकाल दें, एम्बेसडर को निकाल दें और सारे जो है वो चीजें वापस ले लें। सो उधर से इमरान खान कहते हैं कि मेरे और टीएलपी के जो हैं वो हमारे तो मकासद ही एक हैं, हमारा तरीका कार अलग है। अब इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को पता था कि बेसिकली इलेक्शन करीब है, 1.5-2 साल रह गया, ऑपोजिशन से उनकी बनती नहीं है, किसी जमात से उनकी बनती नहीं है, तो आप ये कर दो कि आप मजहबी जो वोट बैंक है उसको नाराज ना करो। जो दाएं बाजू का मजहबी वोट बैंक है उसको नाराज ना करो। ये सारी बैटल उस चीज की है, और ये सारी बैटल जो थी वो इस चीज की है कि अगर आपने इनको नाराज कर दिया तो हम अपने हलकों में वापस कैसे जाएंगे। कल शेख रशीद साहब के घर के बाहर जो प्रोटेस्ट हुए और जो गालियां दी गई उन्हें, तो उनको वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है। तो जब ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने छोटे छोटे मकासद देखती है और जो लार्जर पिक्चर या रियासत की बड़ी शक्ल क्या होती है उस शक्ल को नहीं देखते। ये जब भी फैसले पाकिस्तान में होते हैं ये बहुत छोटे अरसे के लिए फैसला होता है कि अब कल हमारा मकसद क्या है, 2 महीने के बाद हमारा मकसद क्या है, 6 महीने के लिए मकसद क्या है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए थी। लोगों को आपने तैयार किया, सब लोगों ने बात की, लोग खड़े हुए, जी ठीक है इनको बैन कर देना चाहिए, ये कालेदम है। अब उनके सामने कालेदम लिखा जाता है। पैमरा जो है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, वो उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं चला सकती, वो उनके किसी बंदे को दिखा नहीं सकती। अब आपने क्या हुआ कि अब आपने जो आपके पास विंडो थी उसमें आपने सही तरह ऑपरेट नहीं किया, तो अभी जितना स्पैन लंबा हो गया वो आप पे हावी हो गए। और जब वो हावी हुए तो गवर्नमेंट के पास चारा कोई नहीं होता, क्योंकि वो सारा टाइम गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है। सो अगर ये फैसला किया गया था वंस फॉर ऑल, तो पहले 36 घंटे में, 24 घंटे में आपने जो करना था कर लेते आप। अभी वो सारी की सारी मेरे पास वो जो एक वीडियो है जिसमें सारे हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं और साथ इधर मौलवी हजरात भी बैठे हुए हैं, और वो जो है वो शेख साहब वहां पे बयान पढ़ रहे हैं। अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे वो वीडियो चलाते हुए, बिकॉज उससे क्या होगा कि मुझे आई एम फीलिंग ऑड एंड बैड कि मेरी रियासत और मेरी रियासत के नुमाइंदे वहां बैठे हों और वो किस तरह जो है वो रियासत का एक जो है वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं कि जी ठीक है हम रिट्रीट कर जाते, आप जीत गए हम हार गए। सो ये फैसला पार्लियामेंट में दोबारा किया जाए कि पार्लियामेंट की शक्ल क्या है, इस पाकिस्तान की क्या शक्ल हम लोग बना रहे हैं। क्या हम हर 6 महीने बाद किसी ना किसी इस्लामिक जत्थे के आगे जाएंगे और उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेंगे? ये पिछले 5 साल से तो ये जमात हमें लेके बैठी हुई है, और ये जमात के अलावा हर वो जमात जो फोर्सफुली चीजें कराए,
हमें किसी भी सियासी जमात, कोई भी सियासी और मजहबी जमात जो हो, ये बात तो ये भी होती है कि ये मजहबी जमातें क्या होती हैं? क्या जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो क्या वो मजहबी नहीं है? क्या इमरान खान मजहबी नहीं है? क्या आसिफ अली जरदारी मजहबी नहीं है? क्या मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो मजहबी नहीं है? सारे मजहबी लोग हैं, सारे इस्लाम पे यकीन रखते हैं। तो इनको क्यों कहा जाता है कि ये मजहबी लोग हैं, और इनके आगे हम क्यों होस्टेज बनते हैं? ये पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की इतनी गंदी शक्ल दुनिया में गई है, इतनी गंदी शक्ल दुनिया के सामने पेश हुई है कि एक चलती चलाती रियासत को जब मर्जी आप पकड़ के उसके टर्न कर देते हैं। चंद हजार लोग आते हैं, वो रियासत का रुख बदल देते हैं। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल बहस होने की जरूरत है, बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल बहस होने की जरूरत है। और ये बहस अगर ना हुई, और अगर पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन मुतय्यन ना की कि हमारी डायरेक्शन क्या है, और हमने ये दानिशमंदाना फैसले ना किए और रियासत की एक अपनी आउटलुक जो है वो मेंटेन ना की, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक अच्छा फैसला कर पाएंगे। इमरान खान साहब एक फ्रेश फेस थे। इमरान खान साहब दुनिया के सामने आए थे कि मैं पाकिस्तान बदलूंगा, लेकिन हमें तो पाकिस्तान जो है वो पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, आगे जाता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। ये जो लोग हैं, ये जो लीडरशिप है, ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? सो यहाँ पे आके हमें ये जो मजहब का इस्तेमाल है सियासत में, इसका क्या मुस्तकबिल है? क्या हम इसी तरह मजहब का इस्तेमाल करते रहेंगे? क्या हम इसी तरह ब्लैकमेल करते रहेंगे और ब्लैकमेल होते रहेंगे? क्या हमने तरक्की नहीं करनी दुनिया में? ये हमारे सामने अरब ममालिक हैं, किस तरह उन्होंने मजहब को कट टू साइज, उन्होंने कहा जी मजहब आपका जाती कारोबार है, ये रियासत के मामलात और है। खबरदार किसी ने प्रोटेस्ट किया। हमारे यहाँ पे जब मर्जी जिसका दिल करता है उठ के हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अब आप आज का रेजोल्यूशन से पूरी दुनिया में क्या मैसेज आएगा? आज इंटरनेशनल मीडिया ये फैसला करेगा जी, लिखेगा, खबरें लिखी जाएंगी कि जी जो फ्रांसीसी सफीर है उनकी उनकी किस्मत का फैसला आज पाकिस्तान में होगा। और कोई बैद भी नहीं है कि हमारी कुछ लोग जो हैं वो उसके हक में वोट देंगे। कुछ लोग देंगे कि जहां इनको भेजा जाए। हो सकता है मजहबी जमातें दें, हो सकता है पीएमएलएन दे दे, हो सकता है कोई भी जमात दे सकती है। कुछ भी खतरा है। मैं आई फाइंड इट अ वेरी डेंजरस सिचुएशन राइट नाउ। हम एक बड़े फिक्स में आ गए हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट हैप्पी द वे थिंग्स हैव हैपेंड। नोबडी इज हैप्पी द वे थिंग्स हैव हैपेंड। कोई बंदा खुश नहीं है इस वक्त जिस तरह मामला चले हैं। कोई बंदा खुश नहीं है। आपने पहले अपने आप को एक्सपोज कर लिया, उनको अपने ऊपर हावी कर लिया, अभी हमें रिट्रीट करना पड़ रहा है और वो हमारे ऊपर फिर हावी हो गए हैं। और अवाम जो है जिसको आपने खड़ा किया था कि नहीं भाई आप तगड़े रहें, हम जो है वो रियासत के रेट को चैलेंज नहीं होने देंगे, उनको पता चल गया भाई रियासत की रेट तो चैलेंज हो गई है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन दिस कंट्री। बट हमें इस बात का पता होना चाहिए, ये रियासत ने हमेशा के लिए फैसला कर लिया है कि हमने जत्थों के आगे रिट्रीट कर जाना है, कि ये इस दफा के लिए है, क्योंकि ये अब आंख में चोली बंद होनी चाहिए और हमें अपना कोई ना कोई मुस्तकबिल लायामल तैयार करना चाहिए कि रियासत की आउटलुक क्या है। और ये जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल बैटल्स हैं, इनको फॉरएवर परमानेंट डिसाइड करें और अपने आप को मजीद इंगेज ना करें। जिस तरह की बहस पाकिस्तान में होती है पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। किस मुल्क ने ये बात की है कि जी हमें फ्रांस के सफीर को भेजना चाहिए? क्या हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं और दुनिया सारी बुरे मुसलमान हैं? क्या हमारे अंदर हम जो मुसलमान हैं, क्या हम दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं? दुनिया में कहीं किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि हमें फ्रांस के साथ कैसे डील करना, और हमें ख्याल आ रहा है कि चंद हजार लोग फैसला कर लेंगे। हम लोग इतने जज्बाती लोग हैं कि हमें कोई किस तरह भी लगाया हम लग जाते हैं। We have to be more rational, logical, argumentative. We have to be pluralistic. We need to engage and accommodate people. और हमें दुनिया के साथ डायलॉग एंड एंगेज होना है। इस तरह नहीं है कि जब जिसका दिल किया उठा मुंह उठा और रियासत की गन पॉइंट पे कहा कि अब ये कानून लेके आओ, अब ये पार्लियामेंट में करो, क्योंकि मेरे साथ मौलवी हैं, मेरे साथ जत्थे बैठे हुए हैं पीछे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। Very sad state of affairs, and I wish
کہ پاکستان کو اس طرح کے دن نہ دیکھنے پڑیں اور پاکستان فار ایور پاکستان کی جو سیاسی اشرافی ہے یہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہے پولیٹیکلی اور آئیڈیالوجیکلی کہ یہ ہمیں ایک اچھا راستہ اور ایک لانگ ٹرم سولوشن پاکستان کے پرابلمس کا دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بیکاز دے آر سو